Ma'am, two types, broad spectrum and narrow spectrum. Fine. Means you have understood. So today we are going to study. We have already started cephalosporin, right? Till mode of action. That day we have completed till mode of action in cephalosporin, right? Yes, ma'am. Okay, fine. So today we will see classification. This cephalosporin is basically divided into uh, based on the generation it is divided. So the classification is based on generation, that is first generation, second generation and third generation. Do you have your books? All of you have your book? Yes, ma'am. Okay. So in first generation, which all are medication are there? Cephalothin, cephalozolin, cephaloridin, cephalexin. Fine. This all comes under first generation medication. And here also it is given susceptibility to beta lactamase, तो इनका जो भी जब आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, so first in first generation you have to write down in any of the generation, चाहे वो first second third कोई सा भी generation हो, first में आप drug mention करोगे, the drugs which comes under the given category. That is, if you have to write down about the first generation, then you have to write down the drug name first of all, then you have to write down the susceptibility to beta lactamase. Fine. So in first generation you can see the susceptibility is higher for beta lactamase, and the dose which is given is also mentioned, that is 1 to 2 gram 6 hourly for cephalothin, 25 to 1 gram 6 hourly for cephalozolin, 1 to 2 gram daily for cephaloridin, daily means in 24 hours. Cephalexin is 25 to 1 gram 6 to 8 hourly. Fine. And the route is also given. And what adverse effect it can lead, that is also given. The first generation drug can lead to might be nephrotoxic. That is, it can affect the kidney function of a person. Likewise, second generation medication, the name comes under R, cefamendol, cefoxitin, cefuroxime, cefactor, and the susceptibility to beta lactamase is, it is highly resistant. Okay, it is highly resistant towards beta lactamase. Doses are also given, and basically what it will do, it will affect okay, it can lead to bleeding.
Last is third generation medication. And the third generation medication includes third generation medication include cefotaxime, maxillectum, ceftriaxone, cefoperoxone. And these all are also very all these drugs are also in third generation highly resistant. So basically second generation and third generation drugs are highly resistant to beta-lactamase. Dose is also given 1 to 2 gram 12 hourly, 1 to 4 gram is given 8 hourly for maxillectum, and 1 to 4 gram daily for ceftriaxone and cefoperoxone. It can also, the side effect is similar to that of sorry. Side effect is also similar to that of second generation medication. That is, it can also lead to bleeding, due to hypothrombinemia. Basically, it affects the platelet. Due to the reduction or reduce in the number of platelet count, it will lead to bleeding in the patient. So now we will see the uses. तो आपको जो क्लासिफिकेशन है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है? You just have to memorize it all. If we go through the uses, किस कौन कौन से इन्फेक्शन में या कौन कौन से माइक्रोब्स के अगेंस्ट दिस cephalosporin is being used is gram negative infection including septicemia, respiratory tract infection, urinary tract infection, hepatobiliary and abdominal infection. इन सारे जो भी इन सारे इन्फेक्शन है इसके अगेंस्ट में ये यूज होता है, ठीक है? बेसिकली ये याद रखना कि ग्राम नेगेटिव की फर्स्ट यूज जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट है. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा होगा ना ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव इन माइक्रोबायोलॉजी. Yes, ma'am. Next, second use is mixed infection. Either it might be of gram negative, gram positive, or hospital acquired infection. Fine. और उसमें अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन है और
हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है तो कौन सा यूज होता है? थर्ड जनरेशन का सिफेलोस्पोरिन। बेसिकली मैंने ये नहीं बताया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन को क्यों डिवाइड किया गया है। बेसिकली फर्स्ट जनरेशन मींस जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, फाइन। जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था उसका जो वो कैटेगरी हो गया फर्स्ट जनरेशन का। देन आफ्टर दैट विद सम इम्प्रूवमेंट दूसरा जो प्रोड्यूस किया गया या फिर दो जो जनरेट किया गया वो सेकेंड जनरेशन में आ गया, और जो फाइनली अभी जो चल रहा है या फिर जो सबसे लेटेस्ट वाला होगा वो थर्ड जनरेशन, बेस्ड ऑन दैट, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ठीक है। तो नेम इट सेल्फ सजेस्ट फर्स्ट जनरेशन मीन्स जो सबसे पहले से हुआ होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन जनरेशन। अब एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? If somebody is given cephalosporin, what all symptoms we can see, or what all might be the complaint of the patient? First is sometime pain and abscess formation in the site of the injection. जहाँ पे injection दिया है, that side the patient may complain of pain and abscess. Drug-induced diarrhea, it can lead to diarrhea also. Hypersensitivity reaction, that is basically similar to पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में क्या हो जा रहा था? रैशेस हो रहे थे, रिमेम्बर। एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या आ रहा था पेनिसिलिन के? रैशेस, पेन, ठीक है। तो वही सारी चीजें इसमें भी आएंगी, सेम, इट वुड बी सेम। एंड सम ब्रांड्स नेम आर गिवन। जैसे सिफेलोजोलिन में कौन कौन से ब्रांड, सिफेलोजोलिन कौन कौन से ब्रांड नेम में आपको मार्केट में मिल जाएगा? ऑरिक्सोलिन, रेफ्लिन, सिफेमैक्सिन, एजोलिन। तो लाइकवाइज सारे ड्रग्स के ब्रांड नेम दिए हुए हैं कि मार्केट में कौन से नेम में ये अवेलेबल रहते हैं, फाइन। नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन। इसके आप लोग साइड बाय साइड नोट्स भी बनाते रहना। अगर बुक है तो नोट एकदम स्पेसिफिक नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो बुक है, जो आप जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उसमें भी जो कंटेंट है वो नोट्स के फॉर्म में ही है। उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो कि एक्स्ट्रा है जिसको आपको कस्टमाइज करके फिर यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स। दैट बुक इज एक्चुअली सफिशिएंट, but try to make running notes, or try to make notes just in points. Like if you are making notes for the adverse reaction of cephalosporins, then you can write down pain, abscess formation, then drug induced diarrhea, hypersensitivity, like this. One point or two, 1 or 2 points you can write down like that. So next is tetracycline. Is cephalosporin is clear? Yes, ma'am. Okay. एक बार 2 मिनट के लिए एक बार सिफेलोस्पोरिन देख लो और पेनिसिलिन भी देख लो, ठीक है। कुछ अगर समझ भी नहीं आता है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, देख लो। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे पूछ लेना। 2 मिनट में देख लो, फिर हम टेट्रासाइक्लिन स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ कोई डाउट नहीं है तो वेरी गुड, वी विल स्टार्ट विद टेट्रासाइक्लिन, अदरवाइज वी विल गो विद योर डाउट्स।
ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? मैम एक बार बीटा लैक्टम बता दीजिए मैम, ये क्या है बीटा लैक्टम? ओके, देखो जो बीटा लैक्टम है ना, बेसिकली वो दोनों में मिलेगा आपको, ठीक है, पेनिसिलिन में भी मिलेगा और सिफेलोस्पोरिन में भी मिलेगा। बीटा लैक्टम और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट जो जो हम पेनिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन का अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है, जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है और जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप, हर एक केमिकल, जो भी केमिकल होता है उसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, फाइन, उसका एक फॉर्मूला होता है, बोलने का मतलब है ना, केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी एक केमिकल का, और उसी केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो बीटा लैक्टम जो है ना, वो एक काइंड ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और बिकॉज ऑफ दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो पेनिसिलिन में भी फॉर्म होता है और इसमें सिफेलोस्पोरिन स्पोरिन में भी फॉर्म होता है, ठीक है। और जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से ही, बिकॉज ऑफ दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो ये सिफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन है, इनका आप एक तरफ से कैरेक्टरिस्टिक बोलो, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है, और इसका इफेक्टिवनेस भी ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर दे आर मोर इफेक्टिव। जो ये रिंग है वो बेसिकली क्या करता है, ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब को क्या करता है, उसको एक घेरे में लेता है और उसके बाद किल करता है। समझ रहे हो तुम? यस मैम। मैम बेसिकली ये एक एंजाइम है बीटा लैक्टम। एंजाइम नहीं बोलेंगे हम इसको, एंजाइम भी बोल सकते हो, बट ना बेसिकली जो ये बीटा लैक्टम है, वो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, जो रिंग लाइक बीटा लैक्टम रिंग, जो इसका एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन का इसका एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वही है ये। तो जब ये एक्ट करता है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एंजाइम, तो नहीं बोल सकते हम इसको, एंजाइम नहीं बोल सकते, बट बेसिकली ये है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ विच, जैसे जब केमिकल किसी के ऊपर स्पॉइल हुआ या फिर किस कहीं पे इंसर्ट हुआ, तो ये रिंग फॉर्म कर लेता है, माइक्रोब को डिटेक्ट करके ये उसके चारों तरफ रिंग फॉर्म कर लेता है। ये जो रिंग फॉर्म होता है उसी का नाम है बीटा लैक्टम रिंग और बीटा लैक्टम, ओके और बीटा मैम। लैक्टम इज, एंड व्हेन इट इज अफेक्टिंग दैट, उसका जो इफेक्ट होता है वो ही किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट है? मैम ये और बता दीजिए कि पेनिसिलिन जो है वो ओरली रूट से नहीं देते हैं मैम, इसका रीजन क्या था? नहीं देखो, ओरली कुछ कुछ पेनिसिलिन कभी कहीं कहीं जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देते हैं, कहीं कहीं ओरली भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप देखो क्लोजेक्सिलिन, CLOXACILLIN, देख रहे हो, वो यस उसका मैम। उसका एग्जाम्पल देखो, उसमें जो है ओरली जा रहा है, ठीक है, 250 mg टू 500 mg ओरली हम दे रहे हैं। बट बेसिकली क्या होता है ना कि इसमें एक आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, एसिड लेबाइल और एसिड रेजिस्टेंट, है ना। तो यस बेसिकली क्या मैम। होता है, अगर तो ये एसिड लेबाइल है, एसिड के साथ वर्क करने वाला है तो ठीक है, एसिड रेजिस्टेंट अगर मेडिसिन है कोई, तो वो बेसिकली क्या होगा, अगर आपने ओरली दिया, तो ओरल अगर मुंह से खा रहे हो कोई भी चीज, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू योर स्टमक और योर गट, राइट। एंड आवर गट, ह्यूमन बॉडी गट इज हाईली एसिडिक इन नेचर, और अगर एसिडिक है तो देन डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि एसिड उस डोज पे वर्क करेगा और उसका इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाएगा, आइदर खत्म हो जाएगा आइदर कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम ओरली इसीलिए कम देते हैं, और बहुत कम मेडिसिन ओरली दिया जाता है, बिकॉज कि अगर आप ओरली दे रहे हो पेनिसिलिन को, तो क्या होता है कि वो पेट में एसिड होने की वजह से उसका इफेक्टिवनेस, जितना भी डोज है ना उसके अकॉर्डिंग बहुत कम हो जाता है। मतलब आईवी और आईएम दोगे तो आपको बहुत कम डोज देना पड़ेगा, ओरली आपको हाई डोज लेना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी सब में नहीं है, मतलब किसी किसी में तो बिल्कुल ही वर्क नहीं करता है, क्योंकि एसिड के साथ कांटेक्ट में आके बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, और किसी किसी में क्या होता है, थोड़ा रेजिस्टेंट है, मतलब एसिड एसिड को फाइट कर रहा है ना।
तो उसका इफेक्टिवनेस कम होगा बट वर्क जरूर करेगा। फाइन, तो इसीलिए ऐसा होता है कि जो पेनिसिलिन है उसको ओरली अवॉइड किया जाता है, नहीं देते हैं ओरली, ठीक है। या फिर किसी किसी मेडिसिन में देते हैं, जैसे एम्पिसिलिन है इसमें भी देते हैं ओरली, ठीक है। ओके मैम। एम्पिसिलिन देते हैं, क्लोक्सिसिलिन देते हैं, तो ये सारी मेडिसिन हम ओरली देते हैं बट इसका डोज हाई रखते हैं। और बेसिकली जब आप ओरली दे दोगे तो एसिड के कांटेक्ट की वजह से इसका इफेक्टिवनेस गेट रिड्यूस्ड, ये इसका मेन रीजन है, ठीक है। ओके मैम। ओके, एनीथिंग एल्स? नो मैम। तो ठीक है, वी विल स्टार्ट विथ टेट्रासाइक्लिन। So tetracycline is a group of antibiotics which are chemically and pharmacologically very similar, ठीक है। बेसिकली ये किसके साथ सिमिलर है? अगेन ये पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन के साथ, these are also similar, ठीक है। They are obtained from soil एसिटोमाइसिन। जब एसिटोमाइसिन सॉइल्ड हो जाता है तब दिस इज फॉर्म। दिस ग्रुप इंक्लूड कौन कौन सा चीज आता है इसमें? क्लोर टेट्रासिलिन, ऑक्सी टेट्रासिलिन, टेट्रासिलिन, डिमी क्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। These are the drugs, or these are the groups basically, sorry not drug, these are the groups which comes under tetracycline, and they basically comes under the group of broad spectrum antibiotics, okay। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन से होते हैं? which acts against wide range of microorganism, remember। तो इसमें भी एग्जांपल था टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल था। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन्स आर यूजुअली गिवन orally but can be given by continuous intravenous infusion if required। आई थिंक इतना क्लियर है, बिकॉज इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है कि इसको ओरली भी देते हैं और आईवी भी दे सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो। दिस टेट्रासाइक्लिन इज वेरी वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, ओरली बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। और पूरी बॉडी में अगर आप ओरली ले रहे हैं और इफ somebody is taking tetracycline orally, it absorbs very nicely and it spreads very nicely in the entire body। They are mainly excreted by the kidney in the urine, so the dose has to be reduced in renal failure except the doxy, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है ये आगे? मेरा ये जो बुक है वो बेसिकली क्या होता है, प्रिंट आउट वाला बुक होता है ना, वो है। तो उसमें, और वो भी मेरे टाइम का, तो सारा इसका प्रिंट खराब हो चुका है। हेलो। यस मैम। हाँ स्टूडेंट्स, देखना एक बार, मैंने ना आपको एक आपके ग्रुप में जिसमें मैंने लिंक भेजा था, उसी ग्रुप में आपको एक अभी एक पिक्चर भेजा है, ठीक है। पिक्चर भेजी हुई है उसमें,
ऊपर मेरे को नाम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा जो मेरे बुक, जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मुझे उसका स्पेलिंग बता दो या फिर नाम बता दो कि क्या लिखा है। तुम्हारे बुक में लिखा होगा, वो बताना मुझे। मैम हमारे पास तो दूसरी बुक है, ये वाली नहीं है। ये वाली नहीं है? नो मैम। फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलो मेरा ये प्रिंट आउट वाला बुक है, तो इसमें ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा वर्ड्स तो फेडेड हो गए। ओके कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो ये क्या बताया मैंने कि ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड होता है एंड वेल स्प्रेड टू द एंटायर बॉडी। और ये जैसे कि पेनिसिलिन और सिफेलिस्पोरिन में क्या था कि दे आर नेफ्रोटॉक्सिक, यानी कि किडनी को अफेक्ट करते हैं, राइट। बट ये किडनी से ही बहुत इजीली निकल जाता है, और इसका जो टेंडेंसी है कंपेयर टू पेनिसिलिन एंड सिफेलिस्पोरिन लेस है कि ये किडनी को अफेक्ट करेगा। मतलब बेसिकली ये किडनी के लिए भी बहुत हार्मफुल नहीं है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दे इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म। In the presence of tetracycline, organism cannot multiply properly, thus they primarily act as a bacteriostatic drug. So basically what they do, iska mechanism of action is that entering into the organism's body, what they do, they stops the synthesis of protein in the organism. Fine. And because of the inhibition of production of protein, the growth of microorganisms stops. So basically these tetracycline stops the growth of microorganisms, so they are bacteriostatic. And cephalosporin and penicillin were bactericidal. Okay, and uses are, these drugs are the first choice in cholera, mycoplasmal pneumonia, trachoma. I hope most of the disease condition you have already studied, and rest you will study further. Okay, that's why I'm not explaining each and every disease condition, because if I will go through each and every disease condition, then it will become completely a MSN subject. And next, they are the drugs of second choice in gonorrhea. Okay, syphilis. Basically in gonorrhea, syphilis, granuloma, the first choice of drugs is mostly penicillin, especially in syphilis. Okay, the first choice of drugs is penicillin, and the second choice of drugs is tetracycline. You can give tetracycline when you don't know the nature of organism or the microbe. Sometimes we know the nature of microorganism, right? If some for example, if there is a new condition which is arising and we don't know what is the condition and which organism is affecting and or which organism is causing that condition, then in that case also tetracycline is considered more safer than other medications or other antibiotics. So it is preferable that when we don't know exactly about
the disease causing organism, we can give tetracycline in that case. In the case of acne also, okay, if any sort of acne is caused, then tetracycline is also preferable. Meningococcal meningitis. Again, in meningococcal meningitis, tetracycline is given. So here the dose I'm going to tell you all. Chlortetracycline, oxytetracycline, and tetracycline. For these three medication, 250 to 500 mg 6 hourly orally or IV infusion. Fine. For chlortetracycline, oxytetracycline, and tetracycline, 250 to 500 mg hourly, 6 hourly. Means every 6 hourly we are supposed to give this medication orally, either orally or IV infusion. Then is dimeclocycline. Dimeclocycline is given 300 to 600 mg 12 hourly orally. That means in a day, in 24 hours, you have to give twice dimeclocycline. Doxycycline and minocycline. Doxycycline and minocyclines are given 100 200 mg daily orally. Now इतना क्लियर है? इसमें तो कुछ ऐसे डाउट नहीं है तुम लोग को? नो मैम. है ना, ये तो बहुत सिंपल ही है. मतलब मोड ऑफ एक्शन बेसिकली याद रखना. तो मोड ऑफ एक्शन इज इतना ही है इसमें याद रखने लायक कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसका प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, बिकॉज ऑफ विच द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मल्टीप्लाई, its growth inhibit, and this comes under the category of bacteriostatic. एडवर्स रिएक्शन में क्या क्या आएगा, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? माइल्ड नोजिया, ठीक है, वॉमिटिंग काइंड ऑफ हल्का सा फील होगा, मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग हो सकता है. एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट दर्द, या फिर एकदम यू नो यस क्रैम्प्स काइंड ऑफ हो सकता है. एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया, एंड दिस इज वेरी कॉमन. ऑलमोस्ट you have also experienced, क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी in our lifetime we have taken antibiotics, any sort of antibiotic, either because of fever or because of any pain or anything or any infection. हमने कभी ना कभी तो अपने लाइफ में एंटीबायोटिक्स लिया ही है, और हम सभी को पता है कि एंटीबायोटिक्स का जो बहुत कॉमन सा एक फिनोमेना होता है, एडवर्स रिएक्शन होता है, दैट इज it causes, along with antibiotic they will give you this epigastric discomfort होगा ही होगा, है ना, बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन, दैट इज, और क्या होता है, डायरिया भी होता है. सो इससे हो सकता है कि टेट्रासाइक्लिन दे दिया और उसके बाद क्या हो गया, मतलब कंटिन्यूअस, अगर किसी पेशेंट को कंटिन्यूअस जा रहा है, मतलब कोई एक लॉन्ग टर्म डिजीज कंडीशन है और उसमें टेट्रासाइक्लिन is continuously being given to that patient, then it can damage and produce brown discoloration of developing teeth. ठीक है, टीथ में ब्राउन डिस्कलरेशन हो सकता है. जो अगर वाइट टीथ है या फिर पर्ल्ड वाइट टीथ है, तो that can turn into brown. It can also develop
photosensitivity. ठीक है, if tetracycline is been given, then the person can become photosensitive. Means how it will become, how the person can complain of photosensitivity, that while going to sun, the person can develop rashes, and that rashes will be very painful and give a very kind of burning sensation. So the person can become photosensitive. So these are the adverse reaction of tetracycline, and some brand name for tetracycline is Lenimit, Resticlin, etc. Next is chloramphenicol. This is also a broad spectrum antibiotic. Okay. Chloramphenicol. I hope tetracycline is clear to all of you. Yes, ma'am. Okay, fine. Now we will move to chloramphenicol. So earlier, basically this chloramphenicol was discovered from microbes. Okay, but nowadays it is totally synthetic chemical, and it is completely a synthetic chemical, and it is formed in laboratories only. Okay, as I already said, it is a broad spectrum antibiotic, and somehow it also resembles the characteristic or action of tetracycline. तो ये भी tetracycline से मिलता जुलता है, broad spectrum है, और काफी हद तक मतलब closely resemble करता है. Here it is written closely resemble tetracycline. तो as tetracycline was given orally, तो ये भी orally दिया जाता है और बहुत अच्छा absorption है. ठीक है, orally इसका chloramphenicol का. It spreads widely in body and crosses the meninges and reaches the CSF. Okay, तो chloramphenicol इतना dilute है और इतने अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है कि ये इवन हमारे ब्रेन तक भी पहुंच जाता है, मतलब मेनिंजेस को क्रॉस करते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है, या फिर सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक पहुंच जाता है. तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स don't have the capacity to cross the blood brain barrier. Okay, and which cell is considered as blood brain barrier? Anyone? आप लोग अभी सेकेंड ईयर हो तो आपने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा एनाटॉमी में कि कौन सा ऐसा सेल होता है जो कि हमारे ब्रेन में होता है और जो वर्क करता है एज ए ब्लड ब्रेन बैरियर. जैसे कि ब्लड में से कुछ भी जो केमिकल है उसको क्रॉस करने नहीं देता, मतलब बहुत ही डाइल्यूटेड अगर केमिकल है then only it can cross that barrier. Which cell is termed as blood brain barrier? याद है? Anyway, it's astrocytes. ठीक है, astrocytes, oligodendrocytes आपने पढ़ा होगा, तो astrocytes, oligodendrocytes and monocytes. तो उसमें जो एस्ट्रोसाइट्स आपने पढ़ा होगा वो होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये मतलब इतना डाइल्यूट होता है और इतना इसका एब्जॉर्प्शन, यू कैन सी लाइक इट्स इफेक्टिवनेस, कि कितना इफेक्टिव है ये कि ब्लड ब्रेन बैरियर तक को क्रॉस कर दे रहा है. सो इट्स वेरी इफेक्टिव. ओके, इट इज mainly excreted through kidney. Okay, so mechanism of action is it inhibits protein synthesis in susceptible bacteria by preventing formation of peptide linkage
In its presence, the organism cannot divide properly, thus it primarily acts as a bacteriostatic drug. So this chloramphenicol also inhibit the protein synthesis of protein in microorganism, and along with the inhibition of protein synthesis, what it does, it prevent the microorganism from forming a peptide bond और पेप्टाइड लिंकेज. आप उसको लिंकेज भी बोल सकते हो और या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हो. जैसे प्रोटीन बेसिकली किसका बना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स का बना होता है ना, तो वो पेप्टाइड्स बॉन्ड बनने नहीं देता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स और पेप्टाइड लिंकेज वो फॉर्म होने नहीं देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस क्या होता है, रुक जाता है या प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है. एंड ड्यू टू विच क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अगर पेप्टाइड बॉन्ड प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो रहा है, which leads to the depletion of formation of protein synthesis, then what it will do, it will not let the organism divide properly. Agar organism will not divide properly, then it means it will not multiply properly and it will not grow properly. So this drug also act as a bacteriostatic, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है. फाइन. So this was the mechanism of action. Mechanism of action याद रखना, और एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे, जो भी एग्जाम्पल है और उससे रिलेटेड डोज है, ठीक है, कौन सा रूट है, ये सारी चीजें तो आपको याद करनी होंगी. मतलब दिस ड्रग नेम, रूट, डोज, दिस आर बेसिकली याद करने वाले. ये इसका कोई और आपके पास सोल्यूशन नहीं है, यू जस्ट हैव टू मग अप. और जो समझने का है वो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. ठीक है, यूजुअली यूजेस देखते हैं. अब हमने सिफेलोस्पोरिन के बारे नहीं, क्लोराम्फेनिकोल के बारे में समझ लिया, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया. अब हम देख रहे हैं यूजेस. इट इज मेनली यूज्ड इन एंट्रिक फीवर, यानी कि एंट्रिक फीवर कौन सा फीवर होता है, टाइफाइड. ठीक है, एनारोबिक इन्फेक्शन, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज कर रहा है जो कि ऑक्सीजन ना हो तो भी सर्वाइव कर सकता है, दैट ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज एनारोबिक. So if some organisms are if some anaerobic organism are causing infection, then it can be treated with chloramphenicol. H influenza meningitis. So जो इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस होता है उसमें भी ये यूज होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो माइन्यूट और सो डाइल्यूटेड दैट इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है, क्योंकि मेनिंजेस में पहुंचने के लिए तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा. Ear and eye infection, any sort of ear and eye infection. It can also be used in urinary tract infection. कॉलेरा में भी यूज होता है, रिकेट में भी यूज होता है, क्लेमाइडिया जो इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया से जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें यूज होता है. और मेनिंजाइटिस में अगर मेनिंजाइटिस हो गया और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो दिस क्लोराम्फेनिकोल इज गिवन. डोज क्या होगा इसका, 250 to 500 mg ओरली 6 hourly. ठीक है, और एडवर्स रिएक्शन क्या क्या होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, बोन मैरो डिप्रेशन. देखो एक इसमें इसका एक एडवर्स इफेक्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम. ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच अगर जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको हाई डोज ऑफ क्लोराम्फेनिकोल दिया है, देन द बेबी का जो स्किन है दैट टर्न्स इनटू ग्रेइश, एशेस ग्रे. और ग्रे भी ऐसे नहीं होगा जैसे राख राख वाला जो ग्रे होता है ना, वैसा ग्रे कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, वो बेसिकली किस लिए टर्न होता है, साइनोसिस की वजह से, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है,
कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स कर रहा है, और अब जब इतना ग्रे हो गया है तो इस कंडीशन में जो ये ग्रे हो रहा है बेबी, उसको बोलते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम, एंड मोस्टली इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द बेबी। बेबी डाई भी हो सकता है, मर भी सकता है, ठीक है। और इसके जो ब्रांड नेम है क्लोरोमाइसिटिन, बायोफेनिकॉल, पेरेक्सिन, केमिसिटिन, ये सारे इसके ब्रांड नेम्स हैं। अभी यहाँ तक बताओ कि कोई डाउट है? नो मैम। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? मैम, ये ग्रे बेबी सिंड्रोम में मैम जो हाई डोज अगर मदर को दे रहे हैं तभी तो मैम उसके बेबी पे ये इफेक्ट पड़ेगा। नो नो नो, हाई डोज गिवन टू अ न्यू बॉर्न। मैम देखो न्यू बेबी को बॉर्न कोई को भी, ये तो यस यस, ओरली रूट में दे रहे हैं ना, तो फिर बेबी को कैसे दे देंगे, मतलब न्यू बॉर्न बेबी को? नहीं आईवी भी दे सकते हो ना आप, अच्छा। बट इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है, डोंट वरी। If gray baby syndrome, if higher dose are given to a newborn, the baby develops an ashes gray cyanosis and cardiovascular collapse or may die. अभी क्लियर है? मतलब जो ये लिखा हुआ है वही मैंने आपको बताया कि इसमें कहीं नहीं मेंशन है कि मदर को दिया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है if higher doses are given to a newborn. ओके मैम। ओके, आपकी बुक में कहीं मदर को लिखा है? मैम इसमें लिखा है द न्यूनेटल ग्रे बेबी सिंड्रोम विच इन्वॉल्व हाइपोथर्मिया, साइनोसिस, फ्लैसिडिटी एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स इज ऑफन फैटल। ये लिखा है इसमें। ओके, तो बेसिकली ये बच्चे को ही देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली बेबी को ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इफ हायर डोजेस आर गिवन टू अ न्यूबॉर्न। ओके, इट इज नॉट मेंशन दैट इफ हायर डोजेस आर गिवन टू अ प्रेग्नेंट लेडी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो बेसिकली अगर जो जब बर्न के टाइम में बेबी अगर कोई उसको उसको हमको कोई फाइंड आउट हुआ कि कोई कंडीशन है, ठीक है, अबव जिसमें यूज होता है, वो अगर कोई कोई सा भी एक कंडीशन, जैसे टाइफाइड भी होता है, बहुत सारे बेबी जब बॉर्न होते हैं उनमें टाइफाइड भी हो जाता है ना, और यस कोई मैम। सा भी इन्फेक्शन है, और कितने सारे बेबी तो जैसे मेनिंजेस का एंसेफेलोपैथी, मेनिंजाइटिस, ये सब के साथ भी बॉर्न होते हैं। तो इसमें अगर दे दिया और हायर डोज चला गया, देन इट कैन लीड टू ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। मदर का नहीं है, मतलब मदर को दोगे तो बेबी को होगा, ऐसे वाला नहीं है इसमें, ठीक है। ओके मैम। और तो क्लियर है ना? यस मैम। ये तो ठीक है। अभी आई गेस की टाइम भी होने वाला है, तो अगर तुम लोग आज पढ़ लेना इसको, मतलब पेनिसिलिन एंड क्या क्या हमने पढ़ लिया, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, और हमने क्या पढ़ा है, सिफेलोस्पोरिन, ये हमने पढ़ लिया। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ही है, बट अगर आपको ना ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आएगा तो ये आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि राइट डाउन अबाउट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और आपको 10 नंबर का दे दिया, तो अब तुमको नाम नहीं लिखा होगा पेनिसिलिन या ये नहीं लिया, सिफेलोस्पोरिन नहीं लिखा है, ठीक है, उसमें तो आप कंफ्यूज मत होना। उस समय आपको क्या किसके बारे में लिखना है, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि एक बार हमारे हमारे टाइम में ऐसे ही हम लोगों को क्वेश्चन आया था और अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज
कि क्या है क्या नहीं है, ये करके कि लिखना क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये 4 ही है कि इन चारों में से ही आता है, और जो बाकी हैं आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकते, बट ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तो ये चारों आप एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैं कल क्लास स्टार्ट होने से पहले फिर से क्वेश्चन पूछूंगी पेनिसिलिन, और जो स्टार्टिंग में जो पढ़ाया पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन एंड ये टेट्रासाइक्लिन और क्लोराम्फेनिकोल, चारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। उसके बाद मैं फर्दर स्टार्ट करूंगी आपका इरेथ्रोमाइसिन से। ठीक है, तो हम कल इरेथ्रोमाइसिन पढ़ेंगे एंड इम्यूनोग्लाइकोसाइड है, हाँ ये 2 पढ़ लेंगे। उसके बाद हम क्विनोल से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके मैम। ओके, ठीक है, फाइन। आई विल टेक योर अटेंडेंस अभी। What students have present?